discussed about the forces. Okay, we have discussed about at least 5 or 6 of the forces we have discussed so far. Now we're going to discuss a type of force. When it is applied onto an object, it produces rotation into that. Okay, Oh, when okay. on the application of force, it produces rotation in that object. Such a force is known as Moment. moment or torque. It is represented at like this. Okay, we can also say that rotational force, rotational effect of force is known as Moment. moment. Okay, the only thing we need to keep in our mind is that force must be applied perpendicular to the object. Okay, like you could see in the following Okay. diagram. Perpendicular. Okay. In order to produce the rotational effect of force, the thing that we need to keep in our mind is that the force Pivot. must be applied perpendicular to the object. There are two Okay. terminologies that we need to keep in our mind is pivot. Pivot is defined as The central. the point around which the body rotates. Like इस door का pivot point कहाँ होगा? This would be the pivot point. The hinges, because around this the body is rotating. Okay? The pivot point is the point around which the body rotates. And the second one is moment arm. Moment arm is defined as the perpendicular distance from pivot point to the point of application of force. ठीक है? अब अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें तो this is an object, this is the pivot point, this is the point of application of force which is perpendicular to the object, this is pivot, and this is moment arm. Okay, so moment is equals to F cross D. It's a vector quantity and its unit is, क्या बनेंगे units इसके ज़ैनब? What do you think would be the units of this? इसका यूनिट बनेगा, रुके देखने दें, आता तो मुझे होगा। Meters per Newton. Newtons per meter. Per meter या Newton meter? Newton meter. Because force has newtons and D for meters. Newton meters. Are we clear about what movement is? It is Yes, defined sir. as a rotational effect of force. It is named as movement or torque. Do we have any problem regarding movement arm or pivot or the formula? Please check the message as well. See if Mariam has any issues. अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक और पॉइंट याद रखना है कि greater the movement arm,
lesser would the be moment. the required force. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये पिवट ड्रॉ करता हूं. दिस इज फोर्स F1, दिस इज फोर्स F2. ग्रेटर डिस्टेंस किसका बन रहा है? F2. ठीक F2. है, and this is D1. So the one which is closer to pivot are greater in magnitude than the forces that are away from the pivot points. ठीक है, for example, if I want to balance a seesaw, ठीक है, and I have The someone distance who should is be heavier in weight in comparison to one which is lighter in weight. जो lighter in weight होगा उसको मैं so we pivot से should away करूंगा, uh, और जो heavier in weight होगा I'll put closer to pivot. सर ये पढ़ा हुआ है सर. Okay, So here basically, if F2 we want to balance, is we have to greater make than the. F1. So if we want to balance, we have to make the moments equal. Yes, which is our next topic, principle of movements, which tells us that the clockwise movement is equals to anti-clockwise movement. हाँ. क्या मतलब? मैंने क्या फिनिश कर दिया हुआ है क्या? मैंने लेक्चर एंड कर दिया हुआ है क्या? आई वाज जस्ट राइटिंग इट. ऑब्वियसली मैं बताऊंगा ना अभी क्या होता है. व्हाट्स द हरी? Let's say up I have this seesaw. I have this force F2 and this force F1. Okay. If I say F2 is bigger, तो किस तरफ tilt होगा हमारे पास? It will go like this. तो movement क्या आएगी इसी वजह से? Clockwise. This is clockwise. This is anti-clockwise. ऐसे ही होता है ना? Are जी you सर. guys familiar with the clockwise and anti-clockwise movement? Yes. ठीक है? तो सेम नहीं हुआ. अरे ऐसे. अब जब फोर्स ग्रेटर होगी तो इस साइड पे क्या होगा? ड्यू टू दिस सर फोर्स सर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो वो सर हमें सर ये फिर बताता है कि पिवट की ईदर साइड के ऊपर द मूवमेंट रिमेन्स कांस्टेंट इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. या हम ये भी कह सकते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम clockwise movement should be equals to anti-clockwise movement. For example, if I say the force is 2 Newton and the distance is 6 centimeter, what would be the value of force and distance here in order to balance this? Clearly, this is closer to pivot. It means force का magnitude क्या होगा? ज्यादा, और movement का क्या होगा? कम. ठीक है? So when they are multiplied, we'll get 12 Newton centimeter on either side. This only occur if object is in equilibrium. या हम ये भी कह सकते हैं to bring an object to equilibrium, clockwise movement should be equals to anti-clockwise movement. And clockwise movement and anti-clockwise movement का basic meaning यही है कि rotation किस तरफ जा रहा है, influential weight किस side पे है, कि which is giving the right way. Obviously, if something is pushing down, तो clockwise हो जाएगा, the other one would automatically be anti-clockwise. अगर मैं इस साइड की बात करता हूं, अगर मैं redraw करूं डायग्राम को ऐसे, if I say this force is bigger, तो ये कौन सा मूवमेंट होगा? एंटी क्लॉकवाइज.
ठीक है। जी इफ आई से दिस फोर्स इज बिगर, तो ये कौन सा होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट। clockwise. यहाँ पे एक और चीज आपने याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। क्यों? ये आप सीनियर लेवल पे जाके पढ़ोगे। डू वी हैव एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? एनीवन? No. सर ये जो आपने ऊपर भी किया कैलकुलेशन, ये 2 सेंटीमीटर 6 न्यूटन वाली, इसकी नहीं समझ आई। मतलब इक्वल होना चाहिए ना, ऑन बोथ साइड इक्वल होना चाहिए ना। तो मैंने कहा कि इफ जी। दिस इज फर्दर अवे फ्रॉम द पिवट पॉइंट, इट मींस सपोजिटली इसकी वैल्यू 2 है एंड डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर, हम्म। व्हाट वैल्यू शुड बी प्लेस्ड हियर के 12 सेंटीमीटर का ही आंसर है। तो आई चोज 6 न्यूटन फॉर द फोर्स एंड 2 सेंटीमीटर फॉर द डिस्टेंस, बिकॉज व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस विद ईच अदर आई गेट 12। ओके। और मैंने फोर्स को बिगर क्यों रखा? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया पिवट के जो क्लोजर होगा दिस वुड बी ग्रेटर फोर्स और उसका मोमेंट आर्म Okay. स्मॉलर होगा। यस। सपोजिट वैल्यू से इट वाजंट लाइक के कुछ भी ऐसा था। जब एक्चुअल मैथमेटिकल क्वेश्चंस आएंगे वहां पे तमाम डेटा होगा। द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इज के फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट एंड मोमेंट आर्म शुड ऑलवेज बी बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट। फॉर एग्जांपल, इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम like this, बाकी इसमें रूल्स ऑफ फोर्सेस वही लगने हैं। दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3, दिस इज F4। ठीक है। F4 का पिवट से डिस्टेंस क्या बनेगा? D4। Uh, F3 का पिवट से डिस्टेंस क्या होगा? D3। D3, F1 का क्या होगा? D1। D1, एंड F2 का क्या होगा? D2। D2. यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि मैंने इन बिटवीन डिस्टेंसेस नहीं लिए हैं। हमेशा फोर्स से पिवट तक का डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज अ मोमेंट आर्म। अब we could see Okay. here in the following diagram that F4 and F3 are acting in opposite direction. So I will write it as F4 D4 minus F3 D3. Pivot is considered as a equal sign, तो मैं equal put कर So दूंगा why F4 D4? because moment F into D होता है ना, जी तो moment on one side is equal to moment on other side का उस वजह से ना, अच्छा सही F into D होता है ना moment। Similarly F फोर्स का moment क्या बनेगा? F1 D1 प्लस F2 D2। मैंने F2 D2 को ऐड क्यों किया? cos दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे थे। अब यहाँ पे नॉर्मली स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने F3 को क्यों माइनस किया, F4 को क्यों नहीं माइनस किया? तो वहां पे हमने एट द स्पॉट क्वेश्चन में देखना होता है विच वन इज द बिगर वन। बिकॉज मूवमेंट हम देखेंगे कि F4 का मूवमेंट फोर्स बिगर बन रही है या D3 की फोर्स, D की वैल्यू F3 बिगर बन रहा है। व्हाटसोएवर Sir, जो भी बिगर F3, आंसर दे रहा होगा उसको हम पहले पुट कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में। मूवमेंट जिसका बिगर आ रहा होगा उसको हम पहले पुट कर देंगे, जिसका लेसर आ रहा होगा उसको बाद में पुट कर देंगे। सर तो हम इनको माइनस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। नहीं ये देखो मतलब ये इन दोनों अपवर्ड को लग रहा है। मतलब हमने रिजल्टेंट फोर्सेस फाइंड आउट की थी ना मुनीब। रिजल्टेंट फोर्सेस में हमने क्या बोला था? व्हेन दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन वो ऐड होती हैं, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो क्या यहाँ पे वो लॉजिक खत्म हो जाएगी आके? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग मतलब इन दोनों को ऐड और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट मतलब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पिवट की ठीक है, एक साइड पे फोर्सेस लग रही थी, ये पिवट की एक साइड पे फोर्सेस लग रही थी। तो हम लोगों ने इनको टोटल फोर्स सब्ट्रैक्ट लेनी है। इसलिए किया, इसको सब्ट्रैक्ट इसलिए किया बिकॉज दे वर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों को इनके मूवमेंट्स को ऐड इसलिए किया बिकॉज दे वर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो बेसिकली हम लोग दोनों साइड्स की टोटल फोर्स ले रहे हैं। हाँ जी, मूवमेंट मूवमेंट फोर्स नहीं, मूवमेंट, वी आर मोमेंट मोमेंट, डिस्कसिंग हाँ मूवमेंट्स है। तो इसका सही जो सही। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन बैलेंस पोजीशन, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन बैलेंस पोजीशन, तो इसका आंसर और इसका आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। इक्वल। इफ इट्स नॉट देन दे विल बी चेंज। तो वो बैलेंस पोजीशन में है। ठीक है। हाँ, तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट to reach टू बी इन इक्विलिब्रियम completely
कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए, should be zero, and resultant movement should be and zero. should be If uh, only resultant force is zero, there is a chance that the object might rotate. ठीक है? sir Because only resultant force is zero है. एक- If only, यहाँ पे sir what do only you mean जरूर by लिखना. complete equilibrium? Sir what do you mean by complete equilibrium? इसके अलावा I भी think कोई तो equilibrium होता वही है? point discuss हो रहा है, वही point discuss हो रहा है right now. Okay. If only resultant moment is zero, then there is a chance that there might be linear motion, which means when an object is in complete equilibrium, it should not be moving. Yes. ठीक है? So for an object to be in, अगर resultant force is zero होता है, तो there is no linear motion. If resultant moment zero होता है, there is no rotational motion. No rotation. And as I told you कि for अगर just linear motion zero होगा तो possibility है कि उसमें rotational motion आ सकता है, and if rotational motion is only zero, there is a possibility कि linear motion आ सकता है. So for an object to be in complete equilibrium, we must take into account कि force and movement both should be equals to zero. Is there any point you want me to repeat up till here? Zainab, Mariam, Ayan, Ahmed, Equals to what? zero. Yes, sir. Sorry, what was your question? Zainab, what was your question? सर वो अभी आपने बोला ना कि रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट मोमेंट किसी चीज Should का be इक्वल equals होना to चाहिए. zero. Should be equals to zero. Both. अगर just resultant force zero होता है तो क्या हो सकता है? There is a possibility कि rotational motion है. अगर just movement zero है तो possibility है कि linear motion आ सकता है. ठीक है? So for an object to be in complete equilibrium, that it should not be moving, both resultant force and resultant moment must be equals to zero. Okay? Okay. Okay. Let me refer few of the examples in order to get to the point. अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा which force would produce the maximum movement. कौन सी force produce करेगी maximum movement? Force 3. force 1. Force 3. And why is that? Because this is the force which is perpendicular to the pivot point. Pivot point के ये भी perpendicular है. ठीक है? उसने कहा 3 forces are pulling on heavy trap door, which force have the biggest turning effect. तो एक तो force भी ज्यादा है, ऊपर से moment arm भी ज्यादा है उसका. ठीक है? तो biggest Oh, movement कौन प्रोड्यूस करेगा? ये. अब जैसे ये है, दिस इज सर एक पिवट सेकंड पॉइंट, ऊपर. दिस इज पिवट पॉइंट, और इसका मोमेंट क्या आएगा? F इंटू सॉरी 80. 40 इंटू 2 विच इज 80. 80 न्यूटन मीटर. बिकॉज यूनिट क्या दिया हुआ है उसने? मीटर. हाँ, ऊपर क्या हुआ? सर सर इसमें पिवट कौन सा होगा? हिंज. ऑब्वियसली ओके. दरवाजा है ना. ओह ओके. दरवाजा. अच्छा, अब ये क्वेश्चन है. ठीक है? फोर्स 30 न्यूटन है. अब इसमें से कौन सा डिस्टेंस है विच आई विल मल्टीप्लाई विद द फोर्स टू गेट द मूवमेंट?
uh, Ahmed, what is the condition of movement arm? सर मुझे पता मोमेंट आर्म Ahmed, what is the condition for movement arm? मोमेंट आर्म मतलब रिजल्टेंट Wow, wow. सर Question flip करें, मोमेंट what is आर्म परपेंडिकुलर होना चाहिए तो 50 होगा 50 नहीं, अहमद का क्वेश्चन है व्हाट इज मूवमेंट आर्म। क्लैपिंग होनी चाहिए वैसे अहमद के लिए अभी। आपका वेयर आर यू मेंटली राइट नाउ अहमद, दैट यू आर आस्किंग आफ्टर कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग के जी मूवमेंट आर्म्स एंड पिवट्स एंड एवरीथिंग क्या होता है, एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर योर क्वेश्चन इज व्हाट इज मूवमेंट आर्म। इज दिस योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इन क्लास? ओके, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? 90 टाइम्स 90 into 0.18 0.18 जो and कि डिवाइडेड बाय 0.07 डिवाइडेड बाय into f. 0.7 Yes. So f would be equals to 231.40 231.4 231.43 43 और 3 अब ये पिवट है, ठीक है, दिस इज द पिवट है। नाउ ओके क्या करोगे, पिवट की इस साइड पे सिर्फ एक फोर्स लग रही है विच मीन 500 into 2, 500 एंड यहाँ पे 2 फोर्सेस 130 लग रही है इन द सेम डायरेक्शन विच वुड बी 400 into 1 plus 300 into 1। सर तो ये तो 700 हो जाएगा हाँ तो भाई साहब क्या हो तो गया, अभी हम क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं ना। इक्विलिब्रियम नहीं है? तो क्या ये 700 हुआ? Who इक्विलिब्रियम would look for the mistake here? हाँ What is the mistake here? it should be 100 What is the mistake? कोई एक बच्चा तो मुझे खुश कर दे आज के लेक्चर के अंदर, किसी ने एक तो जरा 500 सा भी। multiplied by 2 क्यों होगा? सर हाँ? बेसिकली पिक्चर दिखा रहे हैं कि 500 इक्विलिब्रियम है 500 Let multiplied by 2 Ayan क्यों होगा? talk, मुनीर किसी और को भी बोलने दिया करो यार। Let तो Ayan talk. 500 यहाँ पर 500 multiplied by 2 क्यों हो रहा है? वाओ, अच्छा मुझे लग रहा था शायद ये कल कुछ जवाब अच्छा आने वाला है, मतलब 0% ये यहाँ पे। सर ये कैलकुलेट करेंगे कैंसिल तो आउट हो इक्विलिब्रियम नहीं जाएगा। होता अल्लाह के बंदो, 4 से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 था, लेकिन 300 का यहाँ तक का डिस्टेंस 1 तो नहीं 2 बन रहा है। 2 है सर। सर यही तो कह रहा हूँ मैं बाकी ही कह रहा था नहीं तो फिर आ गया 1000। सो क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं? होगा। अब अयान साहब का क्वेश्चन ये था कि 500 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, यही सवाल था ना। जी कौन जवाब देना पसंद करेगा इस चीज का? सर क्योंकि हमने मोशन निकालने के लिए फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया ना। मूवमेंट निकालने के। वो सर मूवमेंट अयान आपको निकालने लेक्चर का कोई समझ आया भी है, कोई एक पॉइंट पे समझ आ क्लिक गया हुआ है आपको? जी सर समझ आ गया समझ आ गया समझ आ गया नहीं आपको नहीं आई है, आपको 0% आई है अयान, नहीं सर समझ आ गया क्योंकि ये एक्सट्रीम स्टूपिड क्वेश्चन था, इवन अहमद से भी ज्यादा। हाँ जी, यहाँ पे एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफ इंटू 0.5 इक्वल्स टू 20 इंटू 0.5, प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे? प्लस 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 लिखेंगे सर 10 इंटू 10 टाइम 1.5 1.5 अब एफ को कैलकुलेट कर लेंगे, 0.5 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर। 0.5 अब उसने हमसे कहा हुआ है यहाँ पे, अच्छा ये तो उसने सॉल्व किया हुआ है।
Okay, you guys can read up till here. Up till topic 4.3, before topic 4.3 तक आपने जो है वो read करना है. 4.1 And and let me know. 4.2. Yes, 4.1 and 4.2. Let me know if you have any questions left.